میں نہیں جانتا کیسے کچھ لوگوں میں یہ جرت پیدا ہوئی کہ وہ نبی کے پاس آئے. یہ تو آپ جانتے ہیں نا, دنیا کی خواہش تھی کہ وہ نبی سے رشتہ جوڑے, لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ رشتہ جوڑے نبی کے ساتھ. یہ جو رستہ تھا یہ کامیاب نہیں ہوا تو پھر دوسرے رستے ہوئے. ایک شخصیت آئی اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ, شرف ہے کہ آپ سے نسبت ہو جائے, اگر آپ احسان فرما دیں تو اپنے اس نوکر کو اپنی فرزندی میں قبول کر لیں. پہلے تو میں کہوں گا نوکر اور فرزندی نہیں, توجہ فرمائے, اپنے نوکر کو اپنی فرزندی میں قبول فرما لیں. رسول اللہ نے جواب میں صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا, میری بیٹی کا اختیار میرے پاس نہیں ہے. اللہ سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے. ہاں میں نے جملہ کہہ دیا, آپ نے وصول کیا, مولا آپ سب کو سلامت رکھے. میری بیٹی کا اختیار میرے پاس, جانتے ہیں کہہ کون رہا ہے؟ جس کا اختیار لوگوں کی بیٹیوں پہ چلتا ہے, جس کا اختیار کائنات کے ہر ذرے پہ چلتا ہے. ہاں یہ جو میں نے جملہ کہا, اپنے جملے کی تشریح کر دوں, میرے نبی کا یہ اختیار ہے, وہ جب چاہے کسی کی نکاح شدہ بیوی کو اس پہ حرام کر دے. ہاں اختیار نبوت ہے, جس کا اختیار لوگوں کے گھروں پہ بھی چلتا ہے, جس کا اختیار کائنات پہ چلتا ہے. وہ کہہ رہا ہے میری بیٹی پہ میرا اختیار نہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی, اس کی بیٹی کا شمار اس کائنات میں نہیں ہوتا. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر اللہ اکبر. جی ہے, سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. ہاں اس کا شمار, اس کی بیٹی کا اس کائنات میں نہیں ہوتا, وہ کہیں اور کی ہے, کہیں اور کی رہنے والی ہے. میرا اختیار میری بیٹی پر. وہ صاحب گئے, کچھ وقت کے بعد ایک اور صاحب تشریف لائے, انہوں نے بھی عرض کی, رسول نے وہی جواب دیا, اختیار میرے پاس نہیں ہے. دونوں باہر گئے اور آپس میں مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ بہانہ ہی ہوتا ہے نہ کرنے کا. تو رسول نے بہانہ کر دیا کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے. وجہ یہ نظر آتی ہے کہ ہم غریب ہیں. آئے میرے ربا کتنے چلا جاواں, ہم غریب ہیں, اس لیے رسول نے ہماری بات کا انکار کر دیا. کسی امیر کو ڈھونڈتے ہیں. چلتے ہوئے مدینے کی امیر شخصیت ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف, ان کے پاس آئے اور آگے کہا کہ آپ تو بہت امیر کبیر آدمی ہیں, آپ رسول اللہ کے پاس چلے جائیے, بڑا حق مہر پیش کیجیے گا, ہو سکتا ہے کہ رسول آپ کی بات کو, آپ کے پیغام کو تسلیم کر لیں. وہ سیدھے آئے مسجد نبوی میں اور انہوں نے آ کے کہا, یا رسول اللہ, اگر آپ مجھے فرزندی میں قبول فرما لینا تو 70 سرخ آنکھوں والی اونٹنیاں, 3 لاکھ دینار, 9 لاکھ درہم حق مہر میں دینے کے لیے تیار ہوں, مجھے اپنی فرزندی میں قبول فرما لیجئے. یہ سننا تھا, رحمت کے چہرے پہ جلال آیا. رسول نے زبان سے کچھ کہے بغیر مسجد نبوی کی زمین سے کچھ سنگریزے, کچھ پتھر, کچھ مٹی اٹھائی اپنے ہاتھ میں اور ایسے مٹھی کو بند کر کے کہا, عبد الرحمن ابن عوف میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ پلٹ کر کہنے لگے, یا رسول اللہ, ابھی میں نے آج دیکھا ہے آپ نے مسجد نبوی کی زمین سے کچھ مٹی اٹھائی ہے, کچھ سنگریزے اٹھائے ہیں, کچھ پتھر اٹھائے ہیں. توجہ میری جانب, ابھی میں نے دیکھا ہے آپ نے مسجد نبوی کی زمین سے کچھ پتھر اٹھائے, کچھ سنگریزے اٹھائے. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ نے اپنی مٹھی کو کھولا تو اس نے دیکھا کہ ہاتھ میں ہیرے اور جواہرات چمک رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا علی, رسول کے ہاتھ میں ہیرے اور جواہرات چمک رہے تھے. رسول نے ایسے اس کی جانب پھینک کے کہا, جن کی ٹھوکروں میں کائنات کی دولتیں ہیں انہیں دولت دکھانے آیا ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. کائنات کی دولتیں ہماری ٹھوکروں میں ہے, تو ہمیں دولت دکھانے آیا ہے. کہنے لگا, یا رسول اللہ, پھر معاملہ کیا ہے؟ رسول نے ارشاد فرمایا,
जियो जियो जी यार। अब फिर इनकी बेटी का रिश्ता आए तो अल्लाह के घर से ही आए। उन्होंने मस्जिद के बाहर ये बात की, नबी ने मस्जिद के अंदर सुनी और आसमान की तरफ देख के कहा, मेरे अल्लाह सुन रहा है ना तेरे बंदे क्या कह रहे हैं। आवाज कुदरत आई, मेरे हबीब आज से पहले मेरे घर से कुछ नहीं आया। हाय हाय अल्लाह अकबर, आज से पहले मेरी तरफ से तेरे पास कुछ नहीं आया। मेरे रब सब कुछ है ही तेरी तरफ से, सारी अता ही तेरी है, सारा करम ही तेरा है, सब कुछ आया ही तेरी तरफ से है। लेकिन अब मामला यह है, पहले बात थी मेरे और तेरे दरमियान, अब शामिल हो गए हैं बाहर के लोग। बाहर के लोग शामिल हो गए। पहले जो कुछ तेरी तरफ से आता रहा वो लाता रहा जो दिखाई नहीं देता था। आज मामला दुनिया वालों का है, अब कोई ऐसा ना आए जो दिखाई ना देता हो। हाय हाय सलामत रहे, मौला कुदरत अता फरमाए। अब कोई ऐसा ना आए कि जो दिखाई ना देता हो। आवाज कुदरत आई, मेरे हबीब परेशान ना हो, जमाना देखेगा। बल्कि जुमला बदल के कहूं, आवाज कुदरत आई, मेरे हबीब परेशान ना हो, अंधा भी देखेगा। हाँ कि कोई हमारे घर से आया है, कोई पैगाम हमारी तरफ से आया है। लीजिए, ये कहने के बाद मैं ही ये काम करता हूं, सारे पैगाम मैं ही लेके जाता हूं, मुझे ही भेज दे। जिब्रील तूने मेरे हबीब की बात नहीं सुनी। आज कोई ऐसा ना आए जो नजर ना आता हो, और तू फरिश्ता है, फरिश्ता इन्हें दिखाई नहीं देता, दिखाई दे जाए तो कुछ और दिखाई नहीं देता। यार इसलिए तुम नहीं जा सकते। अब जो सैयदुल मलाइका पीछे हट गया तो बाकी फरिश्तों की जरूरत क्या कि वो आगे बढ़े। चांद आगे बढ़ा, मेरे अल्लाह मैं चला जाऊं। आवाज कुदरत आई, नहीं, कोई दागदार चेहरा आज न जाए। हाय हाय अल्लाह अकबर। सैयदुन नजूम, सूरज सैयदुन नजूम कहा जाता है, सितारों का सरदार। आगे बढ़ा और कहने लगा, मेरे रब मैं इन सब का सरदार हूं, मैं चला जाता हूं। आवाज कुदरत आई, आज किसी जलने वाले का कोई काम नहीं। हाय हाय सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। हाँ आज तुम भी नहीं जा सकते मेरे अल्लाह। अब जब सैयदुल मलाइका को भी हटा दिया, सैयदुल नजूम को भी हटा दिया, जाए तो जाए कौन। खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, फैसला आज हम खुद ही करेंगे। निगाहे इंतखाबे इलाही जाकर रुकी सितारा ज़ोहरा पर। ज़ोहरा तू हमारा पैगाम्बर बनके जमीन पे अली का रिश्ता लेके चला जा। मैं बड़ा अरसा सोचता रहा, लाखों की तादाद में अर्शी मखलूकात ज़ोहरा पे ही निगाह क्यों रुकी कि यही जाए रिश्ता लेकर। बड़ा अरसा मैंने किताबें छानी, फिक्र के घोड़े दौड़ाए कि समझ में आए कि इसी को क्यों भेजा गया, लेकिन तमाम तलाश किसी नतीजे तक न पहुंची। समझ उस दिन आई जिस दिन कुरान के औरात को पलटना शुरू किया और निगाह जाकर सूरह नजम की पहली पहली आयत पे रुकी। वन नज्म इज़ा हवा, तर्जुमा करने वालों ने तर्जुमा कर दिया, मुझे कसम है सितारे की जब वो उतरा, मुझे कसम है सितारे की जब वो टूटा। बाकी नकवी मिंबर पे बैठ के जिम्मेदारी से कह रहा है, तर्जुमा ये नहीं है कि जब सितारा उतरा या जब सितारा टूटा, तर्जुमा ये है जब सितारा पेशानी के बल उतरा। हाय 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 अल्लाह अकबर। जब सितारा पेशानी के, तवज्जो मेरी जानिब, जब सितारा पेशानी के बल उतरा, इसी पेशानी के बल उतरने को सजदा करना कहते हैं। अल्लाह ने उसे चुना जो अली की दहलीज के आदाब जानता था कि यहां करना क्या है। अल्लाह अकबर। अली हक या अली, वो जानता था तहजीब दहलीज अली की, इसलिए उसे भेजा गया। इधर नबी ने ऐलान कर दिया, रात को सितारा आएगा, जिस दहलीज पे आएगा
फैसला रब्बे दो जहां का उसी दहलीज के लिए है। सारे का सारा मदीना, हर एक फर्द अपने बालाखाने पे था, घर की छत पे था, निगाहें आसमान की तरफ थी। सिर्फ 2 घर ऐसे थे जिनका कोई फर्द अपने घर के बालाखाने पे नहीं बल्कि मुसल्ले पे था। एक नबी का घर, एक अली का घर। अल्लाह अकबर। नबी के घर में बतूल मुसल्ले पर, अली के घर में अली मुसल्ले पर। उधर से सितारा चला, इधर कनीज ने बताया, बिन्ते रसूल सितारा चल पड़ा। नबी की बेटी की जबान से लफ्ज शुरू हुए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अभी नबी की बेटी ने 34 दफा अल्लाह अकबर कहा था कि सितारा दहलीज अली पे सजदा रेज हुआ। हाय हाय, सलामत रहे मौला आपको ज़ात अता फरमाए। अभी 34 दफा अल्लाह अकबर कहा था कि सितारा दहलीज अली पे सजदा रेज हो गया। पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमा है, आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। जब किसी बात पे शुक्र अदा करना हो तो जबान से क्या लफ्ज कहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ही है ना, खाना भी खा ले उसकी नेमत है तो क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सितारे ने अली की दहलीज पे सजदा किया, बतूल ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं पहुंचे मेरे जुमले तक। हाँ हाँ, उधर सजदा हुआ, उधर बतूल ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र का जुमला है। बतूल दुनिया को बताना चाह रही थी शुक्र है, किसी ने तो आज बताया सजदा किस तरफ करना है। अल्लाह अकबर। जी है, सलामत रहे मौला आपको ज़ात अता फरमा। हाँ, सजदा हुआ सैयदा की जबान से, बस तेजी से नतीजों की जानिब आगे बढ़ूं। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह कहा। सितारे का सफर वापसी का शुरू हुआ, वापस जाने लगा। बतूल ने कहना शुरू किया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की बेटी ने 33 दफा सुभान अल्लाह कहा। सितारा अपनी जगह पे जाके रुका। इधर सितारे का दायरा मुकम्मल हुआ, उधर बतूल की तस्बीह मुकम्मल हुई। और मेरे पढ़े लिखे दोस्त जहां पे तशरीफ फरमा है, इस तस्बीह को अपना विर्द बना लो। मेरे मौला इरशाद फरमाते हैं, जिस तरह तुम अपने घर के बच्चों को नमाज का हुक्म देते हो, वैसे हम अपने घर के बच्चों को तस्बीह ज़हरा का हुक्म देते हैं। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों। कोई काम शुरू करने से पहले, कोई सफर शुरू करने से पहले, कुछ करने से पहले बतूल की तस्बीह पढ़ लो, हिसारे बतूल में आ जाओगे। चलो एक और फजीलत इसकी सुन लो और मैं नतीजों की जानिब आगे बढ़ूं। सिर्फ यही नहीं कि हर मुश्किल वक्त पे से विर्द बनाया जाए। एक शख्स ने आकर मेरे इमाम से सवाल किया, आका मौला खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में हुक्म दिया है कि मेरा कसीर जिक्र किया करो, मेरा कसीर जिक्र किया करो। अल्लाह का कलील हाथे में नहीं आता, उसका कसीर जिक्र कौन करे? आदम से लेकर कयामत तक हर बंदा सारी जिंदगी सजदे में सर रख कर जिक्र करता रहे, फिर भी अल्लाह का कसीर जिक्र मुमकिन नहीं, तो एक बंदा जिक्र कसीर कैसे करे? इमाम ने इरशाद फरमाया, नमाज के बाद उसी तशहुद के आलम में बतूल की तस्बीह पढ़ा करो, अल्लाह जिक्र कसीर समझता। अल्लाह अकबर। या सलामत रहे मौला आपकी इज्जत अता फरमाए। तस्बीह पढ़ा करो बतूल की। बहरहाल मामला तस्बीह का तमाम हुआ, सिमट रहा है मेरा बयान। वहां का है हुक्म तो आ गया, वहां का हुक्म तो पहुंच गया, खबर दुनिया को हो गई, लेकिन अब शरीयत के कानून भी तो छोड़ने हैं। तवज्जो अज़ान मोहतरम, ये क्यों हमारे लिए नेमत क्यों है ये निकाह, ये आक़द। नबी आए अपनी बेटी के पास और आकर कहा, मेरी शहजादी मैं बड़ी मुश्किल मंजिल पे आ गया हूं और यहां से अल्लाह करे मैं समझा के निकल जाऊं। आए और आकर कहा, मेरी शहजादी आपका अक़द अली से तय पा गया है। बस यही वो जुमला है जहां मैं खुद सोच सोच के जुमले पे आ रहा हूं। शहजादी ने सर झुकाए हुए अपने बाबा से कहा, बाबा आप तो जानते हैं ना मुझे अक़द की जरूरत ही नहीं है। हाय हाय, आप तो जानते हैं ना मुझे अक़द की जरूरत ही नहीं है। नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी मैं जानता हूं तेरी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत है। हाय हाय,
अल्लाह अकबर। उसकी जरूरत है कि तेरा अक्द हो जाए, तेरा हमसर आ जाए। क्यों मेरे अल्लाह, मेरे रब की जरूरत क्यों है कि मेरा अक्द आ जाए? अज़ीज़ान मोहतरम, बाकी नकवी चैलेंज से आपके सामने ये जुमला कह रहा है, पूरी कायनात में दो ही हस्तियां हैं जो लाशरीक हो सकती थी, एक अल्लाह, एक ज़हरा। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक अल्लाह, एक ज़हरा, ये दो हस्तियां हैं जो लाशरीक हो सकती थी। इसके अलावा तीसरा है ही कोई नहीं। 14 में भी 13 एक जैसे है, ये अलग से खड़ी है। इन 14 में भी ये है कि जो लाशरीक, वरना मुस्तफा और अली तो खुद एक दूसरे के बारे में कह चुके, अना व अली मिन नूर वाहिद। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, ये तन्हा है कि जो लाशरीक, अरे जो 14 में भी हुज्जत है। नहीं, तुमने मौला का फरमान नहीं सुन रखा? 11वें इमाम ने इरशाद फरमाया, नहनु हुज्जतुल्लाह अलल खल्क़ि अजमईन, हम तमाम मखलूकात पर अल्लाह की हुज्जत है। व जद्दती हुज्जतुल्लाह अलैना, और हमारी दादी ज़हरा हम पे अल्लाह की हुज्जत है। ये वो बीबी है जो उसके अलावा एक ही थी जो लाशरीक हो सकती थी। अब उसकी वहदानियत को बचाने के लिए जरूरी था कि कोई बतूल का हमसर हो जाए। यार काश वक्त होता तो मैं तशरीह बयान करता। उसने अपनी वहदानियत को कुरान में कहां बयान किया? सूरह तौहीद में, सूरह इखलास जिसे कहते हो, क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद। जब अहद कह दिया था को इसके बाद कुछ कहने की जरूरत थी, लेकिन वो जानता था कुछ और है जो अहद दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इसलिए उसने मजीद तशरीह करते हुए कहा, अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद, न किसी का बाप हूं न किसी का बेटा हूं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और मैं वो हूं जिसका कोई कुफ नहीं है। बतूल का भी कुफ ना होता अगर अली ना होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला, आपको अता फरमाए। या अली, जिंदगी दराज हो, मौला आप सबको सलामत रखे। हाँ, इसलिए तो रसूल ने फरमाया था, अगर अली ना होते, कयामत से लेकर, अब आदम से लेकर कयामत तक बतूल का कुफ ही ना होता। जो उर्दू समझते हैं उनके लिए जुमला कहूं, अली जैसा शहनशाह जिसके सामने अगर के साथ आए उसे बतूल कहा जाता है। अगर अली ना होते, पता नहीं मैं क्या गया जुमला जो मैंने कहना था। अगर अली ना होते तो बतूल का कुफ ना होता। मेरी बेटी उसका हुक्म है, उसकी जरूरत है। अच्छा बाबा, अगर उसका हुक्म है तो सर तस्लीम खम है। अगर उसका हुक्म है तो सर तस्लीम खम है। जो उसने हुक्म दे दिया उस पर अमल होगा। कहा मेरी बेटी, आपका बाबा होने के साथ साथ बानी शरीयत भी हूं। तवज्जो मेरी जानिब, बानी शरीयत भी हूं। शरीयत के कवानीन भी सिखा के जाने हैं। मैं जो शरीयत दे के जा रहा हूं ना, उस शरीयत में बेटी को यह हक हासिल है कि वो अपना हक महर खुद तय करे। जो बाप बैठे हुए हैं, मेरी शरीयत में बेटी को यह हक हासिल है कि वो अपना हक महर खुद, सदी की साहब, वो अपना हक महर खुद तय करे। इसलिए मेरी शहजादी, आप बताइए कि आपका हक महर क्या होना चाहिए? यहां तक शरीयत थी, इससे आगे तहजीब शुरू हुई। बाबा जो आप फरमा दें। हाय हाय, तवज्जो है मेरी मोहतरम दोस्तों की। बाबा जो आप फरमा दे। कहा नहीं मेरी बेटी, अगर आज मैंने तय कर दिया कानून हो जाएगा, कयामत तक हर बाप तय कर देगा, बेटी को हक नहीं दिया जाएगा। इसलिए आज आप बताएं कि आपका हक महर क्या हो। कहा बाबा अगर ये बात है कि हक मेरा है और तय मैंने करना है, तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दे, तय किए देते हैं। हाँ पूछो मेरी शहजादी, क्या पूछना चाहती हो? कहा बाबा सवाल सिर्फ इतना है, रिश्ता आया कहां से है? हाय हाय, जाग जाए मेरे मोहतरम तो, रिश्ता आया कहां से है? अल्लाह के नबी ने कहा मेरी बेटी, अभी रात ही को तो वहां से आया है।
पैगाम तो वहां से आया, रिश्ता तो वहां से आया। कहा बाबा फिर जिसने रिश्ता भेजा है ना उसे कहिए अपनी शान के मुताबिक दे। अल्लाह अकबर। बस समेट लिया मैंने अपना बयान, 5 या 7 मिनट की जहमत से मट गया बयान। क्यों? ये हमारे लिए नेमत है। उससे कहिए वो खुद तय कर दे। जिब्रील नाज़िल हुए, कदम बोसी की। अल्लाह के रसूल खुदाबंद आलम बाद दरूद सलाम ये इरशाद फरमा रहा है कि मैंने जमीन का सारा नमक बतूल का हक महर लिख दिया है, और आज के बाद जो बतूल का मुनकिर होगा वो मेरा नमक हराम कहलाएगा। हाय हाय, अल्लाह अकबर। जिनके हाथ उठे हैं मौला आपको इज़्ज़त अता फरमा। जनाब सैयद आप सबको सलामत रखे। जो बतूल का मुनकिर होगा वो मेरा नमक हराम कहलाएगा। ये कहा जिब्रील ने, नबी ने बताया। शहजादी ने अर्ज किया बाबा जान मैं इस पे राजी नहीं। आया बड़ा था इसलिए ताकि हर चेहरे पे मेरी नजर रहे। मैं इस पे राजी, ये हक बतूल के सिवा किसी का है ही नहीं कि पैगाम वहां से भी आ जाए और वो कह सकती हो कि मैं राजी नहीं। अल्लाह अकबर। मैं राजी। जिब्रील गए और फिर पलट कर आए। कहा खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है जमीन का सारा पानी हक महर, मैं राजी नहीं। जिब्रील फिर गए और पलट कर आए। कहा खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है जमीन से उगने वाला अनाज का हर दाना तेरा हक महर है, और जो तेरी रजा के बगैर खाएगा हराम खाएगा। हाय हाय। बीबी ने फिर सर झुकाए हुए बाबा से कहा बाबा इस पे भी राजी नहीं। जिब्रील फिर गए और पलट कर आए। कहा खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है सारी जमीन तेरा हक महर। बीबी ने कहा इस पे भी राजी नहीं। जिब्रील फिर गए और पलट कर आए। कहा खुदा इरशाद फरमा रहा है सारे आसमान तेरा हक महर। बीबी ने कहा मैं इस पे भी राजी नहीं। और अब जिब्रील के जिस्म पे कपकपी तारी हुई और खुदा के सामने जाके कांपते हुए कहा मेरे रब जमीन और आसमान पे भी बतूल राजी नहीं। कहा बतूल को जाके कह सारी खुदाई तेरी। हाय हाय, सारी खुदाई तेरी। जिब्रील ने आकर कहा नबी अल्लाह कह रहा सारी खुदाई हक महर में लिख के दे रहा हूं। जनाब सैयदा ने सर को झुकाए हुए कहा बाबा मैं इस पे भी राजी नहीं। जब कहा इस पे भी राजी नहीं, अब जिब्रील गया और कहा अल्लाह मियां बीबी कह रही है मैं इस पे भी राजी नहीं। कहा फिर जाके बतूल से पूछो मेरे पास जो कुछ था मैंने सब कुछ दे दिया है, अब भी इसके बाद राजी नहीं तो खुद बताए कि वो चाहती क्या है। ये निकाह हमारे लिए नेमत क्यों है। जिब्रील ने आके कहा अल्लाह पूछ रहा है कि बीबी आप क्या चाहती है। मैंने तो जो कुछ था वो सब कुछ दे दिया। नबी की बेटी ने कहा जाके खुदा से कहो कुछ नहीं चाहिए, बस अली के शियों की शिफात लिख के दे दी जाए। अल्लाह अकबर।